आप डॉक्टर तुली के साथ ऊपर आइए। डॉक्टर तुली पद्मश्री डॉक्टर मिसेस तुली के विषय में अभी डॉक्टर दीपिका इनका आप साइटेशन रीड कीजिए और Mrs. Uma Tuli, born in Punjabi Hindu Khatri family in New Delhi, Dr. Uma Tuli secured a master's degree from University of Diwali University Gwalior and followed it with another master's degree in special education (M.Ed) for the University of Manchester. Later, she obtained a doctoral degree from the University of Delhi in English literature. She has had a career of teaching at various colleges in Delhi and Gwalior for over 30 years. Dr. Tuli founded Amar Jyoti Charitable Trust with the savings she accumulated from her salary as a teacher in 1981. The institution over the years has grown in stature to become a single window provider of inclusive education, healthcare, vocational training, employment, sports and cultural courses in physiotherapy with Hunter University for teachers training in special education, and also with Manipal University, Madhya Pradesh Bhoj Open University and Indira Gandhi National Open University. It also has a branch in Gwalior. Dr. Tuli is the first non-bureaucrat to be appointed as the Chief Commissioner for Persons with Disability, a position she held from 2001 until 2005. During her tenure, she initiated efforts to set up mobile courts, hassle-free distribution of disability certificates for concessional travel in bus and train, and riding public places of barriers so that persons with disability have easy access. She led the Home Guards contingent in the 1978 Republic Day Parade, the first lady commander to do so. Her efforts are reported behind the participation of Amar Jyoti students at the 1995 Republic Day Parade, reported to be a first for physically disabled children. She is also reported to have contributed to the conduct of 5 national integrated sports meets where children with disabilities competed with normal children. Dr. Uma Tuli has also published many articles and books such as The Spirit, Triumph and the Better Care of Children with Locomotor Disabilities, and has presented papers at several national and international seminars and conferences. Dr. Tuli is the Managing Secretary of Amar Jyoti Charitable Trust since its inception in 1981. A recipient of the Women Achievers Award from the Consortium of Women Achievers. Tuli has also been honored by Berkeley City, USA with a special recognition citation. In 2012, Dr. Uma Tuli was included by the Republic Day Parade in the Republic Day Honours List for the 4th Civilian Award of Padma Shri. It is befitting that this award instituted in honor of a person for the outstanding contribution the organization be bestowed upon Padma Shri Mrs. Dr. Uma Tuli. We wish her success in all her future endeavors. Congratulations, ma'am. और अब डॉक्टर तुली हम आपसे महिलाओं को जिससे प्रेरणा प्राप्त हो उसके लिए हम चाहेंगे पोडियम। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगी। It's such a pleasure to be in the world of women. Women who are known to be the Shakti and women who are here
being awarded. I know there are quite a few more, because Prabhu told me that there will be many more to be awarded. I must say that you must be having a piercing eye to find me out and consider me to be worthy of this award. In a corner of East Delhi, नसीब सिंह जी ने तो बता ही दिया, मेरा कितना अच्छा नसीब है कि हमारा बहुत सालों का साथ, और उन्होंने भी खोज खोज के कहा से हमें हमेशा साथ दिया है। जो अभी बोले ने भी बताया कि इस किस्म से जब नर और नारी इकट्ठे होकर काम करते हैं तभी गाड़ी अच्छी चलती है। मुझे बड़ी खुशी है कि पूर्णिमा जी उनको ढूंढ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, बुला लेती हैं और काम करवा लेती हैं, नहीं तो गाड़ी चलती नहीं। सच में जो बात के लिए मैं नमन करना चाहती हूँ इस संस्था को, वो ये है कि ट्रायंगुलर अप्रोच से समाज सेवा हो रही है। मेडिकल यानी कि हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कुछ लगे हैं एजुकेशन में, कुछ लगे हैं हेल्थ में, कुछ लगे हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो ये इतना अच्छा टीम गेम हो रहा है, ये जानकर आज बहुत प्रसन्नता होती है। अमर ज्योति भी इस ट्रायंगुलर अप्रोच से काम कर रहा है। थोड़ा सा अंतर ये है कि हमने प्राथमिकता दी है उन दिव्यांग जनों को, उन दिव्यांग महिलाओं को जिन्हें समाज से पहले बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड रखा जाता था, और 44 वर्ष के बहुत प्रयासों के बाद आज मैं ह्यूमिलिटी के साथ कह सकती हूँ कि अब दिव्यांग जनों को एक मुख्य धारा में लाने में हम लोग सफल हुए। और उसमें महिलाओं का रोल इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे इतिहास में सक्षम महिलाएं तो बहुत ऊंचे दूर तक गई हैं, और जो दिव्यांग महिलाएं हैं उन्होंने जो हुनर दिखाए हैं आज की तारीख में, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जो बच्चियां मेरे स्कूल में नर्सरी से आई, आज एक बच्ची है जो IAS ऑफिसर बन गई है, असिस्टेंट कमिश्नर रेलवेज में लगी हुई है, एंड शी इज फिजिकली चैलेंज्ड। एक बच्ची है जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, उसको हमने खेलने के लिए कैलिफोर्निया भेजा स्पेशल ओलंपिक्स में, 4 गोल्ड मेडल लेकर आई। इंडियन सरकार ने अपने नसीब सिंह जी उस समय एमएलए थे, 25 लाख रुपया उसको दिया, क्योंकि एक एक्सेप्शन थी कि 4 गोल्ड मेडल लाना, और उसका भाग्य ऐसा खुला कि बहुत अच्छा लड़का उसको मिला, और उसके साथ साथ स्कूल्स ने उसको स्पोर्ट्स कोच बनाना शुरू कर दिया। तो अब आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये कहना सही नहीं है कि खाली एजुकेशन से ही नौकरी मिले। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी बच्चियां जिनको हम कल्चरल एक्टिविटीज के लिए 21 लोगों का ग्रुप ले गए थे, सिंस आई बिलीव इन इंक्लूजन, और अमर ज्योति में नर्सरी से समान संख्या में एक दिव्यांग बच्चों का और सामान्य बच्चों का हम लोग इंक्लूसिव ग्रुप को पढ़ाते हैं, लड़के और लड़कियां, सामान्य और दिव्यांग, समान संख्या में। एक बहुत अनोखी चीज है, पूरी दुनिया में ऐसी संस्था नहीं है जहां इस तरह का नर्सरी से इक्वल नंबर में एजुकेशन शुरू हो, उसी कैंपस में मेडिकल हो, उसी कैंपस में स्किल ट्रेनिंग हो, जिससे कि वो ट्रायंगुलर अप्रोच हम अपनी अटेन कर सके। एजुकेशन, मेडिकल और हेल्थ केयर, एंड एट द सेम टाइम प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल दे, उसमें एक लड़के को कल्चरल एक्टिविटी में स्पिनिंग बहुत अच्छी उसने सीख ली। मैं जापान गई थी 81 में, वहां से 2 कदम सीख के आई थी कि कैसे व्हीलचेयर को संभालते हैं, स्पिन करते हैं। उसमें वो देखकर तो रिपीट करी 20 स्टेप्स और अपने नए जुड़ा लिए, और जो 20 बच्चे मेरे साथ गए थे उन्होंने मिलकर
2-3-4 साल में परफॉर्म करते करते ये तय कर लिया कि हम तो सब मिलकर थिएटर कंपनी खोलेंगे। और वो 20 बच्चे अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद, अपने चैलेंजेस के बावजूद, अपनी इनडोमिटेबल स्पिरिट के साथ हर जगह आज परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और सबकी कमाई हो रही है। तो आप ये देखिए कि एजुकेशन में अगर स्पोर्ट्स नहीं है, कल्चरल नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप उनके रास्ते आगे के लिए अच्छे से खोल नहीं रहे हैं। तो ये रास्ते खोलना, उसमें इस तरह से जो संस्थाएं जुड़ती हैं और मदद करती हैं एक दूसरे की संस्थाओं को, उसको मैं कहती हूँ ये कमाल है 3 C's का: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस। ये सब अमर ज्योति ने 44 साल में जो भी अटेंड किया, या 34 साल में जो ग्वालियर में अटेंड किया है, वो ये 3 C's का कमाल। और दूसरे 3 A's हैं: एक्सेप्टेंस, क्योंकि मैंने ये देखा था जब 65 में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो इंडो पाक वॉर वाज ऑन, और सब ये कहते थे हाय बेचारा, हाय बेचारा। तो ऐसे ये क्या मुसीबत है, एक अंग चला गया तो क्या बेचारा क्यों हो? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, इक्वल फुल पार्टिसिपेशन देना चाहिए। देखिए वो किसी से कम है ही नहीं। इसको प्रूव करने के लिए जब मैंने 1981 में अपने लेक्चरर होने के बावजूद ये संस्था का एक जैसे कहना चाहिए फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन विद नोट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मुझे लोग पागल थे। वो कहते थे क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सामान्य और दिव्यांग एक साथ पढ़ें, एक साथ खेलें, एक साथ कल्चरल करें? हो ही नहीं सकता। और आज मैं सबको आमंत्रित करूंगी, अमर ज्योति संस्था देखने आए। नसीब सिंह जी ने तो बहुत सालों से देखी है और इसको बढ़ते देखा है, लेकिन बाकी भी बहुत सारी मेरी पुरानी फ्रेंड्स यहाँ हैं जिन्होंने देखकर, खोजकर आज मुझे यहाँ बुलाया। मुझे इस बात का बड़ा सुख मिला कि एक एसोसिएशन, और आगे हमारे यहाँ अमर ज्योति में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं। हम लोग आए दिन कहते हैं सदस्य बनो, सदस्य बनो, देखो, जुड़ो और सब मिलकर काम करो। अगर हमें हेल्थ इश्यू होंगे, हम आपके साथ डॉक्टर्स को बुलाते रहेंगे। अगर आपके यहाँ कोई डिसेबिलिटी इश्यू होंगे, आप हमें बुला लीजिए। तो जब तक ये 3 C's और 3 A's में एक्सेप्टेंस, जो मैं एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होती, एटीट्यूडियल बैरियर है। ये दिव्यांग ये क्या करेगा या ये क्या करेगी, लेकिन जब हम रियलाइज करते हैं कि हर व्यक्ति में कोई अच्छी चीज जरूर होती है, उसको उभारिए उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, तो कभी भी वो किसी से कम होंगे ही नहीं। और वो आज की तारीख में मैं हजारों एग्जाम्पल से देख सकती हूँ 44 साल के एक्सपीरियंस से, कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। आप उनको करने का मौका तो दीजिए। छू लेंगे वो भी आकाश, धरती पर चलने का अवसर तो दीजिए। तो ऐसी महिलाओं का भी मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिन्होंने घर में बैठ के मार खाई, रोज ताने सुने, और आज वो ऐसे स्टेटस की भी विमेन है जो कहते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम कर पा रहे क्योंकि हमें मौके मिले करने। तो हम जो समाज में सोचते हैं कि नहीं जी इनको रहने दीजिए, ये कैसे करेंगे, एक समय ये भी कहा कि खाना रख जाते थे और बंद करके चले जाते थे, ये मुसीबत है। एक बच्ची मेरे पास 4 साल की आई थी और उसके साथ में दादा दादी आए। वो कहते हैं कि देखिए हमारे परिवार में ना इनके माता पिता जो है ये समझते हैं हमारे लिए बोझ है। हमें बहुत बुरा लगता है कि माँ बाप ऐसे बोल रहे हैं, तो आप इनका कुछ कर सकते हैं? आप हैरान होंगे सुन के। हमने कहा करवा के देखिए, कर सकेंगे बेस्ट पॉसिबल, लेकिन विश्वास से करवाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे एक टेस्टिंग एजेंसी के पास जाना। एक सेवा तपस्या वाली संस्था में आप आए हैं, हम अपने भगवान में विश्वास रख के पूरी सेवा करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको पढ़ाया, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा कराया, पोलियो स्ट्रिकिंग थी,
उसको प्रॉपर असिस्टेड डिवाइसेस दी और असिस्टेड डिवाइस देने के बाद उसको स्किल ट्रेनिंग दी, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल प्रोग्राम। सो ब्यूटी कल्चर में वो उभर गई, तो हमने उसी यूनिट में उसको इंस्ट्रक्टर बना लिया। इंस्ट्रक्टर जब बना लिया तो मैंने देखा कि ये जब अपने मोटराइज्ड ट्राइसिकल पर आती है बाहर में से, तो मैं भी उसी रास्ते से आती थी आईपीओ से, तो ये किसी को लिफ्ट देती है। अपने घर में तो ब्यूटी कल्चर यूनिट खोल दिया एक कमरे में, और जब 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद लड़की बड़ी हुई तो सबसे पहले उसने अमर ज्योति पढ़ने भेज दिया। और वो जब हमारे यहाँ पढ़ने आई, बीएड वगैरह कर लिया, तो वो हमारे यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब इससे बड़ा सर्कल ऑफ रिहैबिलिटेशन क्या है? सच में तो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज आर सेकंड टू नन। आपके महिला संघ में अगर नहीं है, अभी तक उनको अवसर नहीं दिए गए, तो मैं हाथ जोड़कर बिल्कुल यही करूंगी कि आपका सबसे बड़ा अवार्ड वही होगा कि आप उनको अवसर दें, उनको परखें कि कितने काबिल हैं, और उनको कभी भी दिव्यांग ना कहकर अपने समान अवसर देकर अपने साथ जोड़ लें। और उनके राइट्स हैं वो, और हमारी ड्यूटीज हैं कि हम उनके राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें और अपने उनको कॉन्फिडेंस इनकल्केट करने दें। तभी मैं कहती हूँ 3 A's की जरूरत है, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड एकोमोडेशन। अपने साथ एकोमोडेट करिए, उसको अप्रिशिएट करिए और सच बोलिए। इस तरह की जो सोशल एक्सेप्टेंस होती है, सोशल एक्सेप्टेंस ऐसी ही संस्थाओं से आती है। तो सोशल एक्सेप्टेंस हमारे नारियों को जो विद डिसेबिलिटी है और भी कॉन्फिडेंट बना के ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाएंगे जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैं बहुत सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मुझे यहाँ बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ सारे ही अवार्ड विनर्स हैं, सब ने इतने काम किए हुए हैं कि नसीब सिंह जी को सबको इनाम देना चाहिए। तो जो इतना काम स्वयं कर रही हैं, उनको पहले स्वर्ण पदक मिलना चाहिए। तो ये सारे जो इनाम हैं, एप्रिसिएशन मेक्स द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू एप्रिसिएशन ऑफ persons with disability with an open mind. एक ऐसे समाज में खड़ा करेंगे, they will stand on the same platform as the non-disabled. सबसे पहले व्हील चेयर के लिए यहाँ एक एक्सेसिबल रैंप तो बनवा दीजिए। आपका ये जो भी संस्था है इसको देख रहे हैं हॉल को, मेरा पहला सवाल था उधर भी छोटा सा रैंप चाहिए, इधर भी रैंप चाहिए। आपका कोई लड़की अगर व्हील चेयर में आपके फंक्शन में आएगी तो कहेगी मैं तो वापस से आगे ऊपर जाएंगे। क्या गोदी को उठा के लाएंगे उसको? क्या व्हील चेयर को 4 लोग उठा के लाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तो आपका नेक्स्ट कदम होना चाहिए कि हर प्लेस को यहाँ भी एक्सेसिबल बनाए और बाकी जगह भी। हमने जो पहल की थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, एक्सेसिबिलिटी की, एम्प्लॉयबिलिटी की, वो आप सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्लीज women with disability, children with disability को जोड़ दीजिए, उनको भी मेडिकल सपोर्ट उतना ही दीजिए जिसके लिए वो तरसते हैं, लेस प्रिविलेज है। उनका जो काम आप करेंगे उसके लिए ईश्वर आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर तुलनी कि आपने काम किया है हमारा ये एक छोटा सा अवार्ड स्वीकार करके। और आपने जो कहा, हमारे साथ तो डॉक्टर्स हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हम लोग बिल्कुल आपके साथ दोबारा से आप जुड़ेंगे। और रही बात वहाँ की, हम आईपीएस भवन के जो कार्यकारिणी के लोग हैं उनको ये बात पहुँचाएंगे कि वहाँ एक रैंप बन जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने सही